A very warm good evening, one and all present here. Energy is abstract, like a gravitational force. We cannot perceive it with senses, but we see its effects. This is Pravartan Tatte, delighted and privileged to welcome you all to this 7th edition of Orange City Literature Festival, organized by Raisoni Foundation. It is our limitation not to be able to utilize our energy. The reason lies in its abstract nature. But as we have experienced in earlier session, we can learn it to make it tangible and then benefit from it. I take this opportunity to introduce to the audience the hour's topic, Arihant Jain, on speaking the language of energy. Today we have with us Mr. Arihant Jain, an energy healing chakra expert, pranic healing trainer and managing trustee of the Yoga Vidya Pranic Healing Foundation Trust of Jharkhand and Bihar. As the founder of GMCKS Wellness Studio in Ranchi, he has been actively serving in the field of spirituality for over 15 years. He has trained people to become healers for more than a decade, taught meditation on twin hearts to thousands, and introduced pranic healing to over 1 lakh people across India. Through his dedicated work, he has personally trained and nurtured over 500 individuals in the art and science of healing. Arihant is also a spiritual musician known for creating soulful musical evenings that blend divine energy with sound and spiritual insights. His music and meditative presence uplift and inspire people to connect with their inner light. He beautifully merges spiritual wisdom with a scientific approach to energy and consciousness, empowering people to live healthier and more purposeful lives. We have Dr. Shakti Sharma as the moderator of this session. Dr. Shakti Sharma, a gold medalist in food and nutrition from Rani Durgavati University, holds a doctorate in the same field and has qualified UGC NET. She completed her internship at AIIMS New Delhi and Choitram Hospital, Indore. With over 17 years of teaching experience in reputed institutes of Nagpur, she is a holistic clinical nutritionist specializing in weight management and sports nutrition for young athletes. A certified diabetic educator, she has been successfully running her diet clinic Nutrition and You for more than 5 years. An engaging public speaker, she frequently conducts wellness sessions for corporates, government bodies, and NGOs, and regularly contributes to print and digital media. Her passion for nutrition also reflects in her contributions to academic books for aspiring professionals in the field. As the topic itself, at an outset, I welcome both the guests today, speaker and moderator. Thank you so much, sir. Namaste and a warm welcome to everyone. So it's my pleasure to be moderating today's session. To start with, today we'll delve into a world which we cannot see. It can only be felt with a heart. This is something we always experience, like sometimes as peace, sometimes as energy around some people. So this is the world of energy. And who better can talk about this than Arihant Jain, sir, who has been trained, he has been spending years to understand what is this energy of languages. So, sir, we'll start on the simple and very important note. You say it is the energy of talking. So what is the energy of talking? What is this language of energy? So a very warm welcome to everybody. Good evening to one and all. Can we have a big applause to everyone who are here for the last session of today's. Thank you for joining us. So communication is a system wherein it is used to understand somebody. You know, for example, body language is a form of communication. Facial expressions is a form of communication. Gestures, the tonality, the tone of the voice. So this all comes under communication. Similarly, I'm sure हम लोग सब experience किए होंगे. आप आज morning session में हम लोग discussion किए इस पे कि जब आप किसी घर जाते हैं, घर बहुत सुंदर होता है, but फिर भी अंदर में एक dull feeling आता है. तो हम लोग कहते हैं घर का vibe ना मुझे अच्छा नहीं लगा. And we come out of the house. We meet somebody, right? उनसे पहली बार हम लोग मिले हैं, but we feel very nice. And अब कहते हैं vibe match कर रही है मेरी इससे. That vibe is nothing but energy. So energy बहुत कुछ communicate कर जाता है. और energy पहले communicate करता है, you know.
So, do you agree with me? Yes. So that is why I say energy is a form of communication. And when we know the science of communication, when we start understanding energy, life becomes easy. Because बिना बोले बहुत कुछ हम लोग समझ सकते हैं. किसी को प्यार हुआ है यहाँ पे? खाने से तो मुझे भी हुआ है. Right? Lot of people would have felt love, no? बोलते हैं ना, love जब प्यार होता है तो बिना बोले बातें समझ जाते हैं. Right? ऐसा गुस्से में भी होता है. गुस्से में भी होता है. मम्मी गुस्से में हम समझ जाते हैं. Yes, yes. So any kind of emotion can be understood first because emotions are energy. Thoughts are energy. Okay? So when we learn the science of energy, we understand people just by looking at them. So this is what I feel. Yeah, I thought it's a very simple question, but answer is very complicated. So to understand this more, my next question would be, we all have learned in physics that everything is energy. But you say we all are energy. So what that is means that we all are energy. So in physics, we have learned that energy cannot be created, cannot be destroyed, but can be transformed from one form to another, right? Talking philosophically, if I have to say, have you read Gita? Gita में लिखा हुआ है कि, हम लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे in every incarnation, the soul changes the body, right? Again, energy transforms from one form to another. To make it simpler, हम सब एक word सुने होंगे प्राणी. अपने आप को प्राणी कहते हैं हम लोग. क्यों कहते हैं? Because हमारे अंदर प्राण है. और जिस दिन शरीर से ये प्राण निकल जाता है, what happens? It becomes a body. It becomes a body, right? और body को हम लोग घर पे रखते नहीं हैं, right? उसको हम लोग निकाल देते हैं, हटा देते हैं. Why? Because it is lifeless now. And नाम भी change नाम भी नहीं लेते हैं फिर हम लोग उस we term it as body, right? Because हम शरीर है ही नहीं. हम कौन है? We are the souls, we are not the body. So when we understand this abstract truth, and we start living like it, then we can understand who we truly are. In pranic healing, there's a beautiful concept of who we are, which is explained in a workshop known as Achieving Oneness with the Higher Soul. So who we are soul, we are not the body, right? And हम लोग प्राणी हैं, प्राण से चलते हैं. जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाता है, शरीर ऑफ हो जाता है, बट आपके जो ऑर्गन्स हैं वो किसी और में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं जिसमें प्राण होता है. ऑर्गन्स तो सही थे, बट फिर क्यों आपका डेथ हो गया? बिकॉज शरीर से प्राण निकल गया, और जिसके अंदर प्राण था, वो फोर्स था, लाइफ एनर्जी था, उसमें वो ऑर्गन्स काम कर जाते हैं. So that is why I say we all are energy, and we are not the bodies. Yes. Amazing, sir. So, before we go dive into this topic deeper, if for an experience, can we make everyone experience the energy? Yes, we can do. Just for a few seconds also, if I can experience my energy, like the energy you're talking about. Okay. We cannot see it, Yes. but we can feel it. We can do that. Okay, So let's do an that's great. experiment. Yes, we're looking Do you want to to touch energy? Energy छू के देखें, right? Very simple, बहुत simple steps है. Spine को straight कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए. Okay. And am I audible? I'm audible. Yeah. Thank you. Just press the center of the palms. Okay. Press the fingertips. दोनों हाथों के. Why are we pressing? Because I'm saying. Okay. आप लोग को मूवीज देखने का शौक है? कौन कौन बाजीराव मस्तानी या फिर जो इंडियन वॉर मूवीज है, जोधा अकबर देखें? राइट? उसमें देखते हैं जब वॉर के लिए निकल रहा होता है राजा, तो उसकी वाइफ आती है या फिर उसकी मदर आती है, और वो क्या करती है? तिलक लगाती है ना. कैसे लगाती है तिलक? समथिंग लाइक थम कैसे? समथिंग लाइक दिस. प्रेस करती है ना. आप देखिए उसके बाद चावल लेते हैं और गड़ा देते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट? सो व्हेन वी प्रेस certain chakras or certain areas of the body, certain chakras gets activated. यहाँ पर एक चक्र होता है जिसको hand minor chakra बोलते हैं. When we press this chakra gets activated. और इसी के कारण हम लोग एनर्जी छू पाएंगे आज. So press करें. क्यों प्रेस कर रहे हैं? Because we want certain chakras to get activated. Spine straight. Yes, spine straight. The energy will flow. That's it. Okay. Then connect your tongue to the palate. जीभ को तालू से लगा लीजिए. Okay. ऊपर मुंह बंद रह सकता है, जीभ तालू से लगा रहेगा. ओके. थोड़ा सा हाथ को फ्री कर लेंगे हम लोग. तो हम लोग के शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, मेरिडियंस होते हैं, जिसमें प्राण फ्लो करता है. जैसे वेन्स में ब्लड फ्लो करता है, राइट? हम लोग प्राणी हैं, प्राण से चलते हैं, तो प्राण कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा होगा. इट फ्लोज इन द मेरिडियंस और नाडीज. ओके. सो व्हेन वी मूव अ हैंड लिटिल बिट, व्हेन वी डू
सम रिस्ट रोटेशंस, एनर्जी का फ्लो बेहतर फील होगा हम लोग को. ओके, फिंगर को स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा, स्ट्रेच योर फिंगर्स, परफेक्ट. और अभी करना क्या है, हम लोग स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, जीभ तालू से लगा के रखेंगे, दोनों हाथों को 2 इंचेस मे बी 2 to 3 इंचेस के आसपास रखेंगे. ओके, आर्मपिट्स थोड़ा खोल के रखेंगे. ठीक है, हम लोग सांस अंदर लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे. कुछ देर तक हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे. ओके, फिर मैं आपको बोलूँगा धीरे धीरे हाथों को दूर लेके जाने के लिए और फिर धीरे धीरे हाथों को पास लेकर आने के लिए. ये कुछ देर तक हम लोग करते रहेंगे, अराउंड 1 मिनट. और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसको क्या एनर्जी फील हुआ. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी को सपोर्ट ना लें. ओके, सो लेट्स डू लाइक दिस. कीप योर हैंड्स लाइक दिस, 2 इंचेस अपार्ट, स्पाइन स्ट्रेट, जीभ को तालू से लगा लीजिए, ध्यान हथेली के केंद्र में, आंखें बंद कर लीजिए. रिलैक्स योरसेल्फ, सेंटर योरसेल्फ. कुछ देर के लिए भूल जाइए आप कहाँ पर हैं. जस्ट बी अवेयर अबाउट यू एंड योर पाम्स. Breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, hold. Be aware of the center of the palms. Breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, hold. धीरे धीरे हाथों को दूर लेके जाओ और धीरे धीरे हाथों को पास लेके जाओ. हाथों को दूर लेके जाए, हाथों को पास लेकर आए. बी अवेयर ऑफ द सेंटर ऑफ द पाल्म्स. हाथों को दूर लेके जाएं, हाथों को पास लेकर आए. कंटिन्यू दिस फॉर अ मिनट. हाथों को दूर लेके जाएं, हाथों को पास लेकर आए. जिनको भी फील होना शुरू हो गया है, प्लीज एंजॉय द फीलिंग, एंजॉय द टच ऑफ एनर्जी. Keep on doing it. Continue doing it. And slowly, gradually, with a good big smile on your face, please open your eyes. May I know, किसको किसको कुछ फील हुआ हाथों के बीच में? Can I have a raise of hands, please? Nice. Okay, lot of people. Okay. कोई बताना चाहेगा क्या फील हुआ? कैसा? You felt a lot of warmth? Warmth? Warmth. When you're trying to move them apart, Yes. the warmth was decreasing. Okay. It was increasing more when you came, if you're bringing them together. Okay. So who all experienced warmth? किसको किसको warmth feel हुआ? Okay. So energy has temperature, huh? It's the fourth state of matter. Solid, liquid, gas. The fourth state of matter is bioplasmic matter or energy. Okay. और ether. Okay. So warmth. और क्या क्या feel हुआ किसको? कौन बताना चाहेगा? Yes. Yes. कोई खींच रहा है मेरे हाथों को. A strange pull, right? Right? पास में नहीं आने दे रहे हैं. बीच में कुछ एक फोर्स है जो रोक रहा है हाथों को. Who all felt this thing? किसको किसको फील हुआ? Fantastic, fantastic. Okay. Yes, you were raising hands. You want to say something? Yeah. कुछ बीच में है. Like किसको किसको लगा? iron rods are there. Yeah. क्या? Some rods are there. Some muscles Some are rods there. are there. Some muscles Yeah. are there. Okay. Magnetic push and pull. किसको किसको magnetic push and pull feel हुआ? Great, great, right? So our aura, our energy is actually like a magnet, right? So आपको फील हुआ होगा हाथ पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, बीच में कुछ एक एनर्जी बॉल जैसा है, हाथ आगे आने नहीं दे रहा है. किसी को वार्मथ फील हुआ होगा, राइट? टिंगलिंग सेंसेशन किसी को फील हुआ क्या? हल्का टिंगलिंग. दिस ऑल्सो वन सेंसेशन. धीरे धीरे फील हो सकता है. ओके, आपको फील हुआ? आपको फील हुआ? बहुत कम होता है ये, बट कभी कभी आपको ये भी फील होगा कि यहाँ पे कुछ मूव कर रहा है. यू फेल्ट समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट इज, या.
अभी भी कुछ घूम रहा है, दैट इज चक्रा मूवमेंट. सो चक्रा मूव्स लाइक दिस. ओके, बाय द वे इट इज साइंस. साइंस का मतलब क्या होता है? 2 + 2 = 4. आप जितने बार करोगे सेम आंसर आएगा. आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस. यू विल बी एबल टू टच एनर्जी एवरी टाइम. जिसको आज कम हुआ है, आप 3 दिन और करते रहिए. योर हैंड्स विल स्टार्ट फीलिंग एनर्जी बेटर. अच्छे से फील होने लगेगा. ओके, yes, so this is how we can touch energy. Amazing, Yes. amazing. A round of applause for this. Like, it's really great. So, means I would really say कि why we lost this science, sir. Somewhere this science has been lost. Why? We had this already in our culture. So we're losing this. We'll talk on this also in later part. Yeah, sure. Since we've seen the energy, the second part we come is to the aura only, which you just said. कि there's an aura. So how does the aura does work in our energy system? Okay, thank you. Good question. So she's talking about aura and energy system, right? So let's understand this. हमारा एक फिजिकल बॉडी होता है, ये हम लोग को दिखता है ना? स्थूल शरीर इसको कहते हैं. फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक ऊर्जा का शरीर होता है, जिसको ऑरा कहते हैं. बायोप्लाज्मिक बॉडी इसको कहते हैं साइंस में, या फिर एथरिक बॉडी भी कहते हैं एज पर साइंस. ओके, जिस तरह से हमारे फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, दिल, लीवर, किडनी सब अपना मस्त काम कर रहा है. हम लोग को बोलना नहीं पड़ता, दिल धड़को, चलो पेट खाना पचाओ, राइट? अपने करते हैं सब. दिस बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सिमिलरली हमारा जो ऑरा है उसमें चक्रास होते हैं. ओके, एंड चक्रास एक्चुअली कंट्रोल ईच एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो द एनर्जी सिस्टम क्या क्या है इसके अंदर? द फिजिकल बॉडी, द ऑरा, द चक्रास. यू नो, वी कैन ऑल्सो गो डीपर. ऑरा में बहुत सारे लेयर्स हैं, बट आई एम कीपिंग दिस मच इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे. सो बहुत टाइप्स ऑफ ऑरा भी होते हैं. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. कैन यू सी दिस? There's a slide which is displayed. So aura is actually like a magnet. जैसा हम लोगों ने फील किया. ओके, सो हमारे जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं ना, वो उस ऑरा में स्टोर हो जाते हैं. अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स इमोशंस हैं हमारे अंदर, तो आपको बाहर से क्या मिलेगा एज अ मैग्नेट? आपको नेगेटिव मिलेगा. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इन द इनर वर्ल्ड, इन द एनर्जी वर्ल्ड. अगर आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो आपको बाहर से क्या मिलेगा? पॉजिटिव थॉट्स, positive things. People, situations, circumstances are actually created by the kind of thoughts and emotions or energy we hold in our system. Okay, so something like this. This is. So this brings me to this dialogue of Three Idiots. All is well. So if we cannot like control the environment. So सब कुछ अच्छा बुरा होता रहेगा हमारे साथ. So हमारे अंदर कौन सा thought है, ये हम कैसे manage करेंगे फिर? Like you said, like attracts like. Something bad is happening to me, the energy I will have is going to be negative only, depressing only. So is it something like दिल को समझाते रहो, all is well? Can we change our system by just thinking my energy? Just by thinking, can I change my energy? Yes, so partially yes. The thing is, we should know the techniques on how to transform our thoughts. Okay. How to move from a negative thought to a positive thought, or a negative emotion to a positive emotion. For example, when we feel sad, बहुत बार हम लोग सैड फील करते ही रह जाते हैं, 10 दिन निकल जाते हैं, दुख फील हो ही रहा है. मुझे तो मज़ा भी आने लग जाता है. डिप्रेशन भी अच्छा लग रहा है. कुछ करना नहीं है, बेड पे पड़े रहो, कोई बोले क्या लग रहा है, दुखी हूँ अभी, मत आओ, डिस्टर्ब मत करो. You know, we start enjoying it also. She is actually right. So how to transmute these negative energies and negative emotions, और उस स्टेट से कैसे हम लोग बाहर निकलें, that has to be learned. So एक टेक्निक है, this technique is known as simple technique of meditation. It can help. Breath work, breathing, it can help. You know, so बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करके अपने करंट स्टेट से बाहर निकल सकते हैं. आज सुबह का जो सेक्शन था, इट वाज ऑल ऑन दिस, हाउ टू हैव इनर एल्केमी. कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लोग जा सकते हैं. सो आई विल से मेडिटेशन कैन हेल्प एंड ब्रेथ वर्क कैन हेल्प. बहुत बार क्या होता है जब ब्रेथ वर्क करते हैं, ब्रेथ वर्क मतलब क्या है? वेरी सिंपल. आप कभी सैड फील कर रहे हैं, आप बस ब्रीदिंग करिए. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, विद एन इंटेंशन कि मेरे को इससे बाहर निकलना है. You know, just take a pause, breathe in, hold, breathe out, hold. आप जितना ये करेंगे, धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलने लगेंगे. हम लोग निकलना चाहते नहीं हैं, तो पॉज नहीं लेते हैं, उसी थॉट में रहते हैं कि यार मज़ा आ रहा है, दुख में ही है, राइट? सो उससे निकलना होगा हम लोग को. So let's take a pause and then you can take help कि कैसे बाहर निकल सकते हैं. कोई मेडिटेशन सिखा देगा क्या? कोई हीलिंग कर देगा क्या? We have to ask for help. We have to normalize asking help. So that can help us to get better.
It's incredible to think that our emotion, thoughts, and even memories, it influence our energy system. But this brings us to the heart of today's conversation, the pranic healing. So my question would be, what exactly is the art of pranic healing, and what is the science behind it? ओके सो प्राणिक हीलिंग 2 शब्दों से बना है. प्राणिक जो शब्द है ये शब्द है प्राण से, विच मीन्स एनर्जी और लाइफ फोर्स. ओके अलग अलग कल्चर्स में ना प्राण के अलग अलग नाम है, एनर्जी के अलग अलग नाम है. सपोज जापान में इसको की बोलते हैं, ग्रीक में इसको न्यूमा बोलते हैं, पॉलिनेशियन में इसको माना बोलते हैं, सिमिलरली हाँ हिब्रू में इसको रू बोलते हैं. सो डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर एनर्जी. सो हम लोग यहाँ पे प्राण यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ प्राण से आया प्राणिक. सो प्राणिक हीलिंग. सो हाउ टू यूज़ एनर्जी टू हील आवर लाइफ इज़ प्राणिक हीलिंग. लाइफ के ना मेजर 4 एरियाज हैं जहाँ पे प्राणिक हीलिंग हेल्प करता है. सो इनके जो फाउंडर हैं मास्टर चोआ कॉक्सुई, इनका कहना था कि द पर्पस ऑफ द स्कूल इज़ टू एलिविएट सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी. इस उद्देश्य से ये स्कूल आया कि लोगों के सफरिंग्स को ख़त्म करना है. तो सफरिंग्स ना लाइफ के मेजर 4 हिस्सों में आता है. सबसे पहला है हेल्थ. हु ऑल वांट्स गुड हेल्थ इन लाइफ? किसको किसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए? ऑलमोस्ट एवरीबडी, राइट? सो स्वास्थ्य भी 2 प्रकार का होता है. इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ भी एक हेल्थ का पार्ट है, और फिजिकल हेल्थ, राइट? सो दोनों में प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छे से हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बीपी है, अस्थमा है, वो प्राणिक हीलिंग से हील हो सकता है. अगर किसी को बॉडी में पेन है, वो प्राणिक हीलिंग से हील हो सकता है. अगर किसी को सैड फील हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है, या फिर बस फोकस बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, दैट कैन बी डन विद प्राणिक हीलिंग. सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट वेयर प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प. द सेकेंड एस्पेक्ट कम्स डाउन टू रिलेशनशिप. रिश्ते कैसे होते हैं? रिश्ते होते हैं जब कैसे रिश्ते बनते हैं? 2 जन के बीच में जो एनर्जीज एक्सचेंज हो रहा है उसी से रिश्ते बनते हैं. अगर एक जन दूसरे वाले इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है तो पॉजिटिव रिश्ता बन सकता है. दूसरा को भी पॉजिटिव सोचना होगा तो पॉजिटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा. दोनों में से कोई एक भी अगर नेगेटिव सोचेगा तो रिश्ता क्या होने लगेगा? नेगेटिव होने लगेगा. अगेन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज फॉर्म्स रिलेशनशिप्स. सो दैट कैन बी हील थ्रू प्राणिक हीलिंग. देन मनी मैटर्स, फिनेंसेस, एक्चुअली एवरीथिंग इज एनर्जी. सो पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे हेल्थ हो, दैट कैन बी रियली हील्ड विद प्राणिक हीलिंग. एंड ही टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सपोज आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो आप खुश रह पाएंगे? नहीं ना. सो पैसे भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए. बहुत अच्छा हेल्थ है लेकिन पैसे नहीं है, दिमाग में रहेगा यार रेंट है, बिजली के बिल हैं, चलते रहेगा दिमाग, राइट? तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मेट सो मेनी पीपल हु सेज कि भाई बहुत पैसा है, बहुत अच्छा हेल्थ है, लेकिन शाम को जब घर जाते हैं तो बात करने को कोई नहीं होता है, अच्छे रिश्ते नहीं है. देन अगेन कम सैडनेस. सो तीनों चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो चौथा एस्पेक्ट होता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, विच गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हु वी आर, वेयर डू वी कम फ्रॉम, लाइफ का पर्पस क्या है, डेस्टिनी क्या होता है. अगर डेस्टिनी में कुछ ख़राब लिखा है तो उसको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं. हम क्यों आ रहे हैं भाई, डेथ क्यों हो रहा है मेरा, ये कैसे लाइफ चलता है. सो ऑल दीज प्रोफाउंड क्वेश्चंस जो सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है कैन बी आंसर्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी. So balancing the 4 aspects of life is what pranic healing can give us. And pranic healing can Amazing. And I'm saving few questions for the last because since relationships are being done, so I have something in my mind. I'll come to that. So just for example, some powerful change you have seen through pranic healing in any of your patients or something, which can help us understand it more. Okay. So I think I missed one part of the last question. You said art and science, right? So how pranic healing works? Pranic healing काम करता है on 2 laws. सबसे पहला है लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी. मतलब क्या है इसका? अगर आपके हाथ में एक कट आ जाता है तो वो खुद हील हो जाता है ना, अपने आप. सर्दी खांसी अपने आप हील हो जाता है, फीवर अपने आप हील हो जाता है. मतलब बॉडी अपने आप को हील करना जानता है. तो प्राणिक हीलिंग इसी लॉ को यूज़ करता है. और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ लाइफ एनर्जी. मतलब जहाँ पर भी कोई इशू होता है बॉडी वहाँ पे एनर्जी भेजता है और उसको हील करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर आप पानी में करंट डालते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. दर इज अ रिएक्शन. पुराने ज़माने का कैमरा अगर लें, उसका रील निकाल के धूप में लगा देते हैं. जब धूप पड़ता है तो कैमरा में एक फिल्म निकल के आता है. सो जब धूप पड़ रहा है, धूप इज़ एनर्जी, वो जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, राइट? सो व्हेन वी गिव एनर्जी टू द बॉडी, दैट इज़ हीलिंग. सो बॉडी में जब एनर्जी देते हैं तो बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म फास्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को खुद को हील करना आता है. कैसे हील करता है? एनर्जी के द्वारा. एज अ हीलर व्हाट वी डू, वी ट्रांसफर एक्सटर्नल एनर्जी
वी इंक्रीज द एनर्जी, जिससे बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाता है. Okay, so that is how. So some it example works. of a patient you see seen a transformation. So I can have a lot of examples. I can share one of my initial cases. For example, जब मैं नया प्राणिक हीलिंग सीखा था, so मेरे कॉलोनी में एक लड़की थी जिसको सिवियर माइग्रेन हो गया था. So they used to be our renters. तो उनकी मम्मी को बहुत फेथ था कि भाई कुछ तो ठीक ही सीखा होगा, कुछ कर ही देगा ठीक, यू नो, शी वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद इट. एंड इतना सिवियर उसका माइग्रेन था कि उसके बॉस को उसको एक घर छोड़ने आना पड़ता था जब उसका अटैक आता था. एंड द अटैक वाज ऑलमोस्ट 3 to 4 days a week. इतना सिवियर इट वाज अ माइग्रेन केस. माइग्रेन में क्या होता है ना, धूप से भी ट्रिगर कर जाता है, साउंड से भी ट्रिगर कर जाता है. सो शी वाज सफरिंग एंड आई सेड आई कैन ट्राई, आई हैव लर्नड समथिंग, आई कैन एक्सपेरिमेंट. एंड आई स्टार्टेड हीलिंग हर. And within 5 days, उसका sleep better हो गया, दर्द खत्म हो गए, you know, and she started feeling better. Generally, as per the protocol, बुक में लिखा हुआ है कि 3 महीना लगता है माइग्रेन के केसेस में, but some cases are miraculous. So in 5 days, उसका सारे symptoms खत्म हो गए. उसने मुझे बोला, आई थिंक भैया मेरा हो गया है माइग्रेन ठीक. मैं बोला कि आप 1 साल अगर आपको अटैक नहीं आए तब मैं मानूंगा कि माइग्रेन हील हुआ है. शी केम आफ्टर अ ईयर एंड नॉट अ सिंगल अटैक ऑफ माइग्रेन. Oh, amazing. So this was one Because of the migraine really, it sounds very small disease, but the patient understands कि severe Yes, pain yes. continuously for days it's there. Yes. So healing just by energy system. Just one question: why she had migraine? Some chakra was blocked. So that brings me to chakras, sir, because even yoga talks about chakras, meditation talks. We know there are chakras, but how does it affect our emotional and physical health? The chakras. Okay, so chakras. So what are chakras? Chakras are actually energy centers. Okay, what are energy centers? आप imagine करो कि जैसे एक ट्रांसफार्मर है, उससे एनर्जी आता है घर के स्टेबलाइजर पे, वहाँ पे स्टेबलाइज होता है और फिर पूरा घर पे एनर्जी फ्लो करता है, समथिंग लाइक दैट. सो चक्रा क्या करता है, बाहर से एनर्जी लेता है और चक्रास में यू इमेजिन लाइक वायर्स हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं. ओके, और चक्रा एनर्जी ले रहा है और वो वायर्स के थ्रू सारे बॉडी में एनर्जी जा रहा है. सो देर आर 11 मेजर चक्रास जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. You know, there's one system, I think that's displayed here. These are the 11 major chakras which controls our organs, body, thoughts and emotions. Okay, it's all real, huh? By the way, you can touch the, जैसे हम लोग एनर्जी टच किए ना, आप चक्रास टच कर सकते हो, आप ऑरा टच कर सकते हो. Energies are tangible. It is our everyday thing. We are doing it every day, and lot of pranic healers are knowing the science how to touch and heal chakras. So, for example, if I deep dive into it, सबसे नीचे देखिए एक बेसिक चक्र है, इसको हिंदी में मूलाधार चक्र कहते हैं, राइट. तो बेसिक चक्र कंट्रोल्स आर स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. किसी को भी बोन में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, इफ यू हील दिस चक्र द प्रॉब्लम कैन गेट रिजॉल्व्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चक्र नोन एज थ्रोट चक्र. हिंदी में इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं. थ्रोट चक्र कंट्रोल्स आर थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स. इट कंट्रोल्स आर वॉइस बॉक्स, यू नो, इट आर फूड पाइप. ओके, सो अगर किसी को थ्रोट थायराइड है तो वी हैव टू हील द थ्रोट चक्र. सो थ्रोट चक्र क्या करता है, बाहर से एनर्जी लेता है और थायराइड ग्लैंड्स तक पहुंचा रहा है, जिससे थायराइड ग्लैंड्स प्रॉपर हार्मोन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, वर्क कर पा रहा है. जैसे ही थ्रोट चक्र काम करना बंद करता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, ढंग से मूव नहीं कर पाता है, एनर्जी नहीं पहुंच रहा है. जैसे टीवी है, टीवी में करंट नहीं पहुंचेगा तो टीवी काम करेगा चाहे कितना भी सुंदर टीवी हो, है ना. सिमिलरली इफ द चक्र इज नॉट फंक्शनिंग द organs will not function well, something like that. So there are 11 chakras controlling different systems of the body. For example, किसको यहाँ पे गैस के इशू है, बहुत कॉमन इशू है ना, गैस्ट्रिक इश्यूज, राइट, एसिडिटी, राइट, यू नो. और कभी ठीक होते हुए देखे हैं क्या, बहुत कम होता है, दवाई लेते रहता है. या खिचड़ी खाने पे भी एसिडिटी, खिचड़ी खाने पे भी एसिडिटी, राइट. डाइजीन खाते रहो या कुछ ना कुछ लेते रहो, क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है. Why? By the way, pranic healing is complementary therapy. As in, आप मेडिकल में जो कर रहे हैं आप करते रहिए, साथ साथ में प्राणिक हीलिंग करिए. We are not fighting with each other. जब दोनों साथ में आता है ना तो बहुत फास्ट हीलिंग होता है. Okay? So why the gastric issues are not solved? Because the root cause is the functioning of the chakra is not proper. एक चक्रा है, इसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं. It is here. इसको हिंदी में मणिपुर कहते हैं. It is आपका जो रिब केज के नीचे जो हॉलो स्पेस है ना, वहाँ पे ही होता है.
ओके जब ये चक्र ढंग से काम नहीं करता है तो स्टमक इश्यूज आएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज आएंगे. ओके रिसेंटली अभी का एक केस वी वर डूइंग हीलिंग, उसको अल्सर था पेट में, राइट, स्टमक के एकदम नीचे वाले पार्ट में, एंड इट वाज समहाउ नॉट गेटिंग डिकोडेड. ओके पता नहीं चल पा रहा था. सो वी स्टार्टेड द स्टमक. फीवर 103 104 जा रहा था. जैसे ही उस रूट कॉज तक हम लोग पहुंचे और स्टमक को हील करना शुरू किए, द फीवर स्टार्टेड टू रिड्यूस. ओके सो प्राणिक हीलिंग कैन रियली हेल्प, बिकॉज जैसे ही चक्रा ठीक होगा organs ठीक होना शुरू हो जाते हैं. Something like that. Yeah. I just with this conversation, I feel the physical body is really overrated. Yeah. We should take more care of our inner energy level, and we can control our body also. Yes. I think it's getting very heavy now. We'll just move to a lighter mode, and Sure. I'll just shoot few questions to you. Yeah. So my rapid fire question is, you just answer in yes or no. Can anyone learn healing? Yes. Anyone can learn. We Above don't have to be the- born with any. No. No. No Oh. special skills required. You just need to have 2 hands. Okay. 2 हाथ है, आप हीलिंग कर सकते हैं. जैसे हाथों का काम बस पेन से लिखना नहीं है, आप बॉटल भी उठा सकते हैं, आप टाइप भी करते हो, आप हैंड शेक भी करते हो. वैसे ही हाथ का सबसे बेसिक काम है एनर्जी ट्रांसफरेंस. सारी देवी देवता ऐसे ही तो ट्रांसफरेंस कर रहे हैं एनर्जी, Right. राइट. बड़े आशीर्वाद ऐसे ही तो देते हैं, right? Everything is transference of energy. So hands का ये काम है. Anybody can do. But to learn pranic healing, you need to be minimum 16 years of age. So Okay. that is. Second is, can pranic healing reduce stress quickly? Yes, pranic healing is a very, very effective tool to manage stress. Manage stress. And can negative energy stay in the aura? Of course. It can stay in the aura. It can stay in the aura. And होता है can ना affect जैसे my कि aura. 100%. जैसे कि Okay. हम लोग 10 साल पहले किसी से बहस हुआ है, लड़ाई हुई है, वो आज तक तो कैरी करते हैं Yes, अपने. yes. भूलते ही नहीं है और भूलना चाहते भी नहीं है. बोलते हैं ना हम कभी नहीं भूलेंगे, उसने मुझे कैसा फील कराया था. So we are holding this negative energy in our aura. Yes. हम लोग उसको पकड़ के रखते हैं. Something like that. Yes, yes, yes. Oh wow! Congratulations on that. Great. Important question is, does distance healing work as effectively as in-person healing? Because now the healers are giving distance healing to us. I got it Yes, done for yes. myself. So Oh. does the same How as... was your experience? It was great. Yeah. I'm a believer of that practice. And as everyone felt the heat, I felt that heat from the entire body. Oh, wow. I felt pain on my chacritis, I don't know, and I slept. So it was a great experience. Oh, nice. Yes, distance healing is सारा result same आता है. Okay. So from what we do, we have healed cancers, distance healing से, thyroid, BP, asthma, in distant healing. You don't need to be. बहुत बार तो patients आ भी नहीं सकते, कोई ICU में है, right? So distance healing can be done. Okay, does pranic healing have side effects? Any research on that? It has side effects. Very good question. Pranic healing does not have side effects. Okay. Why I'm saying this is because पुराने ज़माने में जब doctors थे, तो जब gloves नहीं था तो infections होते थे ना, right? Gloves आने से क्या हुआ? Yeah. You're protecting yourself. Yes. Similarly, pranic healing has lot of tools to protect yourself, so it has no Okay. side effects. First, second, pranic healing has positive side effects. अगर आप किसी का headache ठीक कर रहे हो सकता है उसका nose block ठीक हो जाए. So that is a side effect, if you want to Okay. say. One important question, does healing drain the healer's own energy? We don't use our own energy in healing, Okay. so the healer is completely safe. Completely safe. And does gratitude raise the vibration instantly? Yes, gratitude really, really raises. Because nowadays the we're talking a vibration. lot about gratitude, means to increase your energy level. Yes. It does increase. Yes. Any other question from the audience? We can take. Yeah. Yes, yes. So is there a difference between Reiki and pranic? Oh, good question. So if I mentioned कि जापान में की मतलब energy, right? So Reiki is also a form of energy healing. As per what I know about Reiki, I'm not a Reiki practitioner, but a lot of my students, they are Reiki practitioners. So a lot of techniques are not there. For example, the technique of scanning. कैसे एनर्जी को आप स्कैन कर सकते हैं with your hands, somewhere is not there. There are other techniques which are not there. Reiki is also very powerful, it's very good. But what I know, pranic healing is, अगर it's way advanced. The techniques are way advanced here. And it's very systematic. You get to know the science behind it. Who wants to learn pranic healing? Yeah. Yes, we'll come to that. One more important question which comes to me is the social media nowadays. Yeah. So whenever I'm tired, I feel like scrolling on social media will, it will relieve my stress. But it's the other way out. After scrolling,
आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ स्क्रॉल करके. सो हाउ डज स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम अफेक्ट्स माई एनर्जी सिस्टम? वेरी गुड क्वेश्चन. कितने लोग इससे ग्रस्त हैं? घंटों. आई थिंक लॉट ऑफ अस, राइट. इनके क्वेश्चन में इनका आंसर भी इन्होंने खुद ही दिया. इन्होंने क्या बोला कि जब स्क्रॉल करते हैं उसके बाद क्या हो जा रहे हैं? टायर्ड हो जा रहे हैं, जबकि कुछ किए नहीं थे. ये क्यों हो रहा है? डू यू वांट टू नो? ओके, सो एक्चुअली होता क्या है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कॉर्ड्स. सुना है आपने? एनर्जी लिंक्स. यू हैव डन बेसिक प्राणिक हीलिंग, यू नो अबाउट इट. एनर्जी लिंक्स, राइट. सो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट समबडी, आपके ऑरा से एक एनर्जी लिंक वहाँ तक जाता है. इट्स लाइक पाइप फ्रॉम योर ऑरा. ओके, आप जितना स्क्रॉल कर रहे हो उतना पाइप लगा रहे हो. मतलब आपके ऑरा से एनर्जी क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है. Even if you're not watching the entire reel. Oh. It works like that. So there's a technique known as cutting the negative cords. So when you do that, you are safe. Okay. If you want to scroll, you need to know how to cut the cords. Okay. And also when we scroll, our focus level really reduces. Because आप देखो, अब हल्का सा भी रील अच्छा नहीं लगा तो तुरंत पार होता है, राइट. सो फोकस हम लोग का ऑलरेडी खराब हो गया है. विदाउट फोकस वी कैन नॉट बिकम what we want to. We need to be focused. So apart from energy, scrolling should be not done a lot if possible. So does pranic healing also help us to increase our focus and concentration, like as students if they want to learn? 100%. Okay. जैसे मैंने बताया ना, चक्रा का फिजिकल फंक्शंस भी होता है, चक्रा का साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी होता है. सपोज एक चक्रा है, अगर आप उसको ढंग से एक्टिवेटेड रखेंगे तो आपका फोकस कंसंट्रेशन आ जाएगा. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करने से पहले जस्ट एक्टिवेट दैट चक्रा, यू विल हैव मोर फोकस. और फोकस जाएगा फिर वापस एक्टिवेट कर लो. इट्स समथिंग लाइक दैट. हीलिंग्स हैव टू बी हैंड्स ऑन. आपको लाइफ का उसको पार्ट बनाना पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स यस. That brings me to ma'am's question that if someone wants to become a healer, Yes. so what should they start with? So if somebody wants to become a pranic healer, the first step is basic pranic healing. That is the first course. इसमें बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं. जो पहला वर्कशॉप है उसको बेसिक प्राणिक हीलिंग वर्कशॉप कहते हैं. ये 16 घंटा का वर्कशॉप होता है. इस वर्कशॉप में हम सीखते हैं कि ऑरा होता है कि नहीं होता है, चक्रास होता है कि नहीं होता है. आप छूना सीख जाएंगे. यू कैन वैलिडेट. यू डोंट नीड टू बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली इन द स्कूल ऑफ प्राणिक हीलिंग. आपको वैलिडेट करना है, डिसर्न करना है, फिर मानना है. विद इन 3 hours ऑफ दिस क्लास आप सामने वाले का पेन कम करना शुरू कर देंगे. It's a no touch, no drug therapy within 3 hours of the class. Okay. Then in the class we learn about this 11 chakra system. कौन सा चक्रा कौन से ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, कैसे इसको हील करना है, कैसे अपने ऑरा को हील करना है, चक्रास को हील करना है. वी लर्न अबाउट इट. वी लर्न अबाउट डिस्टेंट हीलिंग. यहाँ से बैठे हुए कैसे हम दूसरे व्यक्ति को हील कर सकते हैं. इन द फर्स्ट बेसिक क्लास ओनली. यू लर्न अबाउट सेल्फ हीलिंग. खुद में पैर दर्द कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है. यू लर्न अ टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. आज सुबह हम लोग मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स किए. दैट्स अ टेक्निक फ्रॉम दिस क्लास ओनली. ओके. देन यू ऑल्सो लर्न अबाउट लॉ ऑफ कर्मा. कर्म का सिद्धांत क्या है, how we attract things in life, how the karma cycle works. ये इस बेसिक क्लास का पार्ट है. We also learn about character building, चरित्र निर्माण, कि झूठ बोलने से क्या होता है, चोरी करने से क्या होता है, हिंसा करने से क्या होता है. बचपन से मॉरल साइंस का ज्ञान तो हम लोग को मिल ही रहा है, बट बहुत बार उतना हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं. तो इन द क्लास यू गेट टू नो द साइंस बिहाइंड इट, कि आप जब झूठ बोल रहे हैं तो एक्चुअली ऑरा में क्या इम्पैक्ट आ रहा है. जब आप क्रोध गुस्सा कर रहे हैं तो ऑरा में क्या इम्पैक्ट आ रहा है. So that is what we learn in this class. Yeah. So the floor is open for questions. Any other question coming from the audience? Yes. Just to get rid of your stress, daily stress. Oh, very good question. Very good question. I can share one simple tip if I want to say. It is a very easy, simple technique, but people take it for granted. Right? It's salt bath. Okay? Salt bath. It's a very, very powerful technique. If you do this for maybe 7-8 days continuously, आप उसको नहीं छोड़ोगे, फिर आपको बॉडी बहुत हल्का लगेगा. कैसे लेना है, लॉट टाइम्स लोग उसको गलत तरीके से करते हैं. जैसे पानी में सॉल्ट डाल दिया और फिर नहा लिए, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा. द सॉल्ट हैज़ टू बी ऑन द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आप सोप जो भी शावर जेल जो भी लगाते हैं, यू आर देयर, उसको आप वॉश ऑफ कर लीजिए. उसके बाद हाथ में नमक लीजिए. इट कुड बी एनी सॉल्ट. इट्स ओके. इट्स बेटर टू हैव ब्लेस्ड बाथ सॉल्ट्स, बट नहीं है तो कोई भी सॉल्ट चलेगा. आप सॉल्ट लीजिए, हाथ में एक पेस्ट की तरह उसको बनाइए एंड पुट इट ऑल ओवर द बॉडी. वेट फॉर 2-3 minutes एंड देन वॉश इट ऑफ. यू विल फील वेरी लाइट. इट्स अ एनर्जाइजिंग टेक्निक in pranic healing, one of the energizing technique, salt bath. So this is what I will say. Yeah. Thank you.
थैंक यू। सिंपल इजी, घर में है सबके नमक? आज से नमक का खपत थोड़ा बढ़ाते हैं। यस यस सर। बुरी नज़र, अगेन अ गुड क्वेश्चन है। बुरी नज़र होता है क्या? कौन कौन एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे? राइट, लॉट ऑफ पीपल, राइट? सो कैन आई सिंप्लीफाई व्हाट इज बुरी नज़र? ओके, फॉर एग्जाम्पल आई इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कॉर्ड्स ना, उतना डिटेल में आई कांट गो, बट जितना मैं बता सकता हूँ, एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एक छोटा बच्चा है, बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है। वो पार्टी में गया, ओके सब लोग बोल रहा है अरे कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, जितने बड़े बड़े लोग हैं सब प्यार से उसको देख रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ। अब बड़े लोग अपने घर गए, बच्चा अपने घर आया, और बच्चा को क्या हो जाता है? यू नो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इरिटेटेड है, क्रैंकी हो रहा है। मम्मी दादी दीदी क्या बोलते हैं? इसको तो नज़र लग गया है। फिर वो कुछ करते हैं ना, और फिर कम भी हो जाता है ना। कैसे हो रहा है ये? राइट राइट। सो नज़र लगना इज नथिंग बट कॉर्ड कनेक्ट हो जाना। यू नो, इतने सारे लोग उस बच्चे को देख रहे थे, उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, कॉर्ड क्या हो रहा है? उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके अब बच्चा बहुत छोटा है ना, इतना सारा एनर्जी आ रहा है उसको। और बड़े व्यक्ति जब पार्टी में रहते हैं ना तो बहुत खुश रहते हैं। जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना तो बहुत उनका रंग रूप बदलता है। देखिए, अंदर से गुस्सा, घर घुसते हैं तो इरिटेशन भी बाहर निकलता है। वो कहाँ जा रहा है अब? सीधे उस बच्चे के पास। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है। वही है नज़र लगना। सर नथिंग, इसमें कुछ बोलते हैं ना, मम्मी का भी नज़र लग जाता है, किसी का भी नज़र लगता है, किसी का भी लग सकता है, बिकॉज नथिंग बट कॉर्ड कनेक्शन। In pranic healing, we get the technique of cord cutting in the first class. It is very, very powerful, very, very effective. अगर मेरा बस चले ना, it has helped me so much, मैं सबको pranic healing करा दूँ। It is a wonderful school which has really helped me and I hope everybody, जैसे ही 16 साल का बच्चा होता है, उसको pranic healing सिखा देना चाहिए। This language of energy should be known to everybody. इट इज़ दैट, बिकॉज हमारा शरीर है, हम लोग इसको नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। हमारा ऑरा है, हमारा चक्रास है, पता ही नहीं है कि इसको कैसे काम करता है ये। इट इज़ लाइक बेसिक्स, मतलब हम लोग को ये आना ही चाहिए। जैसे दिस इज व्हाट आई फील। सो आई विल से एवरी सिटी हैज़ प्रानिक हीलिंग सेंटर्स। प्लीज़ गो टू हुएवर यू कनेक्ट विद नियरेस्ट सेंटर्स एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग प्रानिक हीलिंग। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल स्कूल। या या ओके, सो हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी? यू नो, ऐसी पता नहीं है, आपने बोला तो मुझे कहानी याद आ रही है। एक कहानी था जिसमें एक चूहा था, वो बिल में रहता है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ। एक चूहा था, एक बिल में रहता था, ठीक है। और वो चूहा बहुत डरता था कि बाहर निकलूंगा तो बिल्ली खा जाएगी। तो भगवान नीचे आया और भगवान बोला कि तुमको क्यों डर लगता है, तुम आओ ना, तेरे को कोई खाएगा नहीं, राइट। और वो बिल्ली मतलब फिर भी बिल्ली से वो डर रही थी। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा। तो भगवान बोला मैं तेरे को बिल्ली बना देता हूँ, ठीक है। तो उसको बिल्ली बना दिया, ओके। अब बिल्ली बनने के बाद भी वो अंदर बैठा था, ये यार कुत्ता मेरे को खा जाएगा। भगवान नीचे आया, अब क्या दिक्कत है तेरे को? तो बोला कि भाई कुत्ता है बाहर, चल तेरे को कुत्ता बना देता हूँ। उसको कुत्ता बना दिए। राइट। अब वो कुत्ता है बाहर में, अंदर में उसको अभी भी डर लग रहा है कि बाहर कौन है? नहीं, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन। थोड़े ज़्यादा हम लोग बहुत बार डेडली एनिमल हो जाते हैं। शेर देखिए ऐसे नहीं घूमता है, अगर नागपुर में घूम रहा है तो बता दीजिए, ताड़ोबा ओड़ाबा सब बगल में है यहाँ पे। राइट। तो भगवान बोले ठीक है, तेरे को मैं ह्यूमन बना देता हूँ। अब उसको ह्यूमन बना दिए, फिर भी वो एग्जैक्टली स्टोरी में चेंज ले आते हैं। अब उसको चूहे से डर लग रहा है। राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो इंसान बनने के बाद भी उसका माइंडसेट क्या था? चूहे जैसा ही था। प्रॉब्लम क्या है? डर। व्हेन वी हैव फियर इन अस, वी विल अट्रैक्ट फियर फ्रॉम आउटसाइड। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड गेट रिड ऑफ इज फियर। फियर आपके ऑरा को श्रिंक कर देता है। यू नो, जब भी डर लगता है, बचपन में आपको याद है आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगता था एग्जाम के पहले, क्यों? बिकॉज हमारा जितना लोअर इमोशंस है ना वो यहाँ पे स्टोर होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा में। फियर, एंगर, तो यहीं पे स्टोर होता है वो, इसलिए पेट को वो कंट्रोल करता है सोलर प्लेक्सस। ओके, तो अगर आपको अपना फियर हटाना है, प्राणिक हीलिंग इज अ वेरी गुड स्कूल। इसका थर्ड कोर्स है साइकोथेरेपी।
इस कोर्स में हम लोग फियर को हील करना सीख जाते हैं. I know people, one of my healers in the center, she is around 45, 40, 50. रचना जी 50 अराउंड. यू नो उनको स्कूटी से डर लगता था चलाने से, और उस एज में उनको सीखना था. शी जस्ट हील्ड हर विद साइकोथेरेपी एंड शी केम टू द सेंटर विद स्कूटी. हर एक एज के इंसान अपने फियर को ख़त्म कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आई विल से इज यू कैन अप्लाई द टेक्निक्स. डरना नहीं है अपने को, डर को निकालना. यू हैव टू फेस द वर्ल्ड by using, that is why these techniques are important. क्योंकि स्कूल में सिखाया नहीं जाता है कि डर से कैसे बाहर निकलें, दुख से कैसे बाहर निकलें. स्कूल में सिखाया जाता है कि सोचो, एनालाइज करो, पैसे के बारे में सोचो, कमाओ. You know, this is what majorly is taught. I'm hoping कि education system थोड़ा better होगा. I'm grateful to the Raisoni World और Raisoni Foundation कि इस तरह का ऐसा सेटअप यहाँ पे इन्होंने किया है. इट इज़ ओपनिंग यू नो लॉट ऑफ. कितने स्पीकर्स आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लोगों का लाइफ हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है. सो ये होना चाहिए एजुकेशन में. वी नीड टू नो लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू सच फोरम्स. सो कैन वी हैव बिग अप्लॉज फॉर द ऑर्गेनाइजिंग हियर. इट इज़ वेरी वेरी गुड. आई थिंक अभी तक दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम इनटू अ सिस्टम लाइक दिस. एक पिंक सिटी लिटरेचर फेस्टिवल होता है और एक ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल होता है. बट आई एम हियरिंग नाउ दैट दिस इज ऑल्सो become one notch above the Pink City Literature Festival. This is, I've not validated, but this is what I'm hearing. So I'm really happy and grateful for this system and setup which has been done. So yeah, what I'll say is डर से बाहर निकलिए, टेक्निक लगाइए, टेक्निक सीखिए. May I? Yeah. So since you mentioned कि like pranic healing and psychological functions like cognition, behavior को साथ में लेके चलना पड़ता है. So like we say in rational emotive based therapy, like there are healthy and unhealthy negative emotions. जैसे कि अभी anxiousness mention किया एग्जाम से पहले. But the goal is कि like anxiousness feel नहीं करना है, concern feel करना है. या जैसे मैं यहाँ आने से पहले झगड़ा करके आया था तो आई एम फीलिंग हर्ट. तो अभी जब मैं वो कर रहा था टिंगलिंग इफेक्ट वो हर्ट में ही था. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि like how in pranic healing can these both ideas work together? Where do we see negative energies in pranic healing, or do I need to completely let go of pranic healing, or shall I just stick to pranic healing or REBT? So sorry, I did not frame it well, but yeah, this is what I wanted. So if I've understood the question properly, you're saying कि you know some psychological science. Can you combine it with pranic healing and दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं? Is this your question? Definitely yes. मैंने क्या बोला? Pranic healing is a complementary therapy. आप जो भी जानते हैं उसके साथ आप pranic healing लगा सकते हैं. You know medical science, you know allopathic science, you know Ayurveda, you know homeopathy. साथ में आप pranic healing लगा लो. You will see acceleration happening in your healing. Healing accelerate होगा ही होगा. Okay, so definitely in psychological cases also आप counselings लो, आप counselors के पास जाओ. You know it's okay. We need to open things like आप बात करो, बात करके problems को solve करो and then apply pranic healing. Pranic healing is a tool. आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि फियर है फॉर एग्जाम्पल. अब क्या करना है? प्राणिक हीलिंग को टूल की तरह देखिए, उसको अप्लाई कर लीजिए और फियर से बाहर निकल जाइए. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट yeah, I'll come to you, ma'am. Definitely. It's about empowering your software now. Hardware से तब software पे काम करेंगे. Fantastic. Let's have a big applause for her. Huh? Thank you. Empowering our software. Huh? So I'll give you the flow for question. But when sir was talking, we can learn through techniques. So that brings me. I told you we'll do something. So sir, I request you from all of us, if you can give us a tip to follow daily to manage our relationships, because money I feel is important, but most important for us is to be happy in life. Right. And that is with the people we live around. मुझे लगता है हम सब बाहर सबसे साथ दोस्त हैं, हम घर के 5 लोगों में ही अलग अलग कमरों में होते जा रहे हैं धीरे धीरे. So how to manage relationship, उसकी कोई टिप हमें मिलती है जो हम रोज प्रैक्टिस करें? It will take 5 minutes then. चलेगा? Yes, sir. Okay. Thank you so much. Most welcome. So let's practice a technique. You know, knowledge important नहीं है. Knowledge का implementation important है. हम लोग इतना knowledge available है ना, और उसी को हम लोग सुनते हैं और फिर हम लोग को लगता है कि हम लोग सब जान गए हैं, सीख गए हैं, and that is very deadly. बहुत बड़ा रोग है ये, right? So let's practice the technique. मैं आपको एक technique यहाँ पे समझाता हूँ. This technique is known as the technique of forgiveness. Okay? And forgiveness, yeah? No, it's okay. Yeah. And forgiveness को थोड़ा हम लोग पहले समझते हैं. But this technique comes from the soul class of pranic healing, achieving oneness with the higher soul workshop. It's a beautiful workshop
to understand who we are, okay, and to break negative patterns of our life. सपोज किसी के लाइफ में बचपन से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, दिस क्लास विल रियली हेल्प. किसी के लाइफ में बचपन से पैसों में प्रॉब्लम आ रहा है, दिस क्लास कैन रियली हेल्प. Okay, must do workshop of Master Chua Kok Sui. Master Chua is the founder of Pranic Healing. So coming to the technique of relationship healing, जैसे मैंने बताया रिश्ते बनते हैं एनर्जीज के आदान प्रदान से, राइट? हम जब किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ओके, तो हमारा रिश्ता खराब हो जाता है मात्र सोचने से. और सोचते तो हैं ही, फील भी आता है, नेगेटिव फीलिंग भी आता है, तो ये सब होगा ही. ओके, हम लोग को एवरी डे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए सामने वाले इंसान से. आप जैसे ही फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, आप जो एनर्जी अब उनको भेज रहे हैं वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह बोले यार ये तो इंसान बहुत बुरा है, और आप दिन भर वही सोच रहे हैं इंसान बुरा है, ये इंसान बुरा है, इंसान बुरा है, इंसान बुरा है. फिर आप देखें यार ये इंसान तो मेरा पति है, यू नो, या फिर मेरी वाइफ है, राइट, मेरा बच्चा है, और दिन भर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? नेगेटिव सोच रहे हैं. रिश्ता कैसे अच्छा होगा? जब आपके सामने आएगा आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, आपको उसकी बुराई ही दिखेगी. वी बिकम क्रिटिकल ऑफ पीपल हुम वी लिव विथ, राइट? शादी वादी के बाद तो माइक्रोस्कोप लग जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हो तो नहीं दिखता है, समथिंग लाइक दैट. एंड देन यू नो माइक्रोस्कोपिक व्यू हो जाता है, छोटा सा भी गलती होता है और पकड़ा जाता है, समथिंग लाइक दैट. सो what we should do is we should practice the technique every day. So every day बुरा सोचे, शाम को जाइए घर में थोड़ा सा उसको साफ रखना होगा हम लोग को. Okay, so this technique is forgiveness. Should we practice? Okay, इस टेक्निक में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कर्मा का. ओके, आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखे थे कि जो भी हम लोग को मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? जो भी ऑरा में हमारा एनर्जीज है उसके कारण मिल रहा है. तो कोई और रिस्पॉन्सिबल है आपके लाइफ के लिए? किसी को हम लोग ब्लेम कर सकते हैं? तो फिर हम लोग सामने वाले को क्यों ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा लाइफ ऐसा हुआ है? देयर इज नो पॉइंट. पहला कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट क्या है? द लॉ ऑफ कर्मा. वो क्या कहता है? आप जो बीज बोते हो वही आपको फल मिलता है, राइट? सो अगर आपको किसी से बहुत गुस्सा मिल रहा है तो आपने क्या किया है? कौन सा बीज बोया है? गुस्से का बीज बोया है. तो क्योंकि आप बोए हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे को गुस्सा का बीज बोएं या मेरे को प्यार चाहिए, तो नहीं मिलेगा. आम का बीज बोएंगे और पपाया एक्सपेक्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. समझ पा रहे हैं? सो ये दोनों कंसेप्ट को लेके फॉरगिवनेस टेक्निक बनाया गया है. ओके, इसमें करना क्या है? हम लोग 7 बार माफ़ी देंगे, क्षमा दान करेंगे, और 7 बार माफ़ी मांगेंगे. ताली एक हाथ से नहीं बजता है. ओके, सो वी हैव टू न्यूट्रलाइज द एनर्जी. सो माफ़ी देना है और माफ़ी मांगना है. बेस्ट पार्ट है सामने जाके नहीं मांगना है. ओके, दूर बैठे हुए आराम से कर सकते हैं. डिस्टेंट फॉरगिवनेस. ओके, सो कैसे करना है? आप जो सुबह ट्विन हाथ्स किए थे, हम लोग इमेजिन किए थे ना, हाथ के सामने अर्थ और हाथ से एनर्जी अर्थ में जा रहा था. सुबह जो थे यहाँ पे, हम लोग बस हाथ को ऐसे रखेंगे. इसको ब्लेसिंग पोस्चर कहते हैं, आशीर्वाद की मुद्रा. ठीक है, और दोनों हाथ के सामने जिस भी व्यक्ति से हम लोग को माफ़ी और हम लोग को रिलेशनशिप अच्छा करना है उसको इमेजिन कर लेंगे. इमेजिन नहीं भी हो पाएगा तो इंटेंट कर लेंगे, भावना बना लेंगे कि भाई इसको मेरे को माफ़ करना है. चलेगा? ओके, और मैं एक प्रेयर बोलते जाता हूँ, उसको हम लोग मन में दोहराएंगे. ओके, तो 7 बार माफ़ी देंगे, 7 बार माफ़ी मांगेंगे. कितने कितने लोग को 5-6 लोग मिल गए हैं जिनसे फॉरगिवनेस करना है? मिल गए? एक बार में एक ही हो पाएगा. हाँ? That's what I want to ask कि सबको एक साथ रख के नहीं कर सकते. मुश्किल है. सबसे जो खराब चल रहा है ना अभी, उसको पकड़ लीजिए. ओके, वो जनरली आपके घर के अंदर सबसे क्लोज आदमी होगा. ओके, उसको बाहर वालों से फर्क ही नहीं पड़ता है. एग्जैक्टली, बाहर वाला ठीक है, yes, बोल के निकल गए. सो करें, मिल गया सबको एक इंसान. ओके, अब दोनों हाथ को छाती के स्तर पर, यहाँ पर हार्ट चक्र होता है एक्चुअली, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ रखने बोल रहा हूँ आप लोग को. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे हाथ रखना है. ओके, एंड दोनों हाथों के सामने उस व्यक्ति को इमेजिन करिए. आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज, और डिलिजेंटली मन से इसको प्रैक्टिस करते हैं. ओके, उस व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति के 1-2 अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए. कुछ तो अच्छा होगा उसमें, कोशिश करिए. स्माइल अच्छी होगी, काम अच्छा कर लेता होगा, पैसे कमा लेता होगा, कुछ तो कर पा रहा होगा. यू नो, जस्ट थिंक्स ऑफ फ्यू गुड क्वालिटीज.
उस क्वालिटी को देखिए, उस क्वालिटी के लिए उसको धन्यवाद बोलिए कि आपके इस क्वालिटी के कारण मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। अब उसको बोलें मनी मन, आत्मा नमस्ते। आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू। आई रिकग्नाइज द गुडनेस इन यू। आपने जाने अनजाने में मुझे बहुत दुख दिया है, चोट पहुंचाया है, लेकिन मैं आज ये भी जानता हूँ कि ये मेरे ही कर्म के फल हैं जो मुझे आपके द्वारा मिल रहा है। आप बस एक निमित्त मात्र हैं। यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर जस्ट अ डिलीवरी पर्सन जो कि मेरे ही फल को मुझ तक ला रहा है। हम सब गलतियाँ करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको माफ़ करूँ। मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैं आपको पूर्ण तरह से माफ़ करता हूँ और मैटर को भुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में शांति रहे, प्रेम रहे। ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपके द्वारा मुझे चोट दुख पहुँचा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ ये मेरे ही कर्म के फल हैं जो मुझे आपके द्वारा मिल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में शांति रहे, प्रेम रहे। ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट दैट इज हाउ वी इवॉल्व। आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन। लेट देयर बी लव, पीस एंड जॉय बिटवीन अस। ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं। आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपने मुझे चोट दुख दिया है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे ही कर्म के फल हैं जो मुझे आपके द्वारा मिल रहे हैं। मैं आपको पूर्ण तरह से माफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में शांति रहे, प्रेम रहे। ओम शांति 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 ओम। अब उस व्यक्ति को देखें, उस व्यक्ति को अपने साथ देखें और आशीर्वाद दें। अपने आप को बोलें, अपने आप को आशीर्वाद भेजें, प्रेम का, खुशी का। उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें, प्रेम का, खुशी का। मुस्कुराते हुए देखें। अब वापस से उस व्यक्ति को अकेला देखें। अब उनसे हम माफ़ी मांगेंगे। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती हैं। मुझसे भी गलतियां हुई हैं। मैंने भी जाने अनजाने में आपको चोट या दुख पहुंचाया है। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में शांति रहे, प्रेम रहे। ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल आर इवॉल्विंग। I ask for forgiveness for all the mistakes that I have done. Let there be love, peace and joy between us. Om Shanti 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 Om. आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैंने भी जाने अनजाने में आपको चोट या दुख पहुंचाया है। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं और इस मैटर को भूलता हूं। The matter is forgotten. Let there be love, peace and joy between us. ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती हैं। मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने भी जाने अनजाने में आपको चोट दुख दिया है। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, इस मैटर को भूलता हूँ। ओम शांति 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 ओम। The matter is forgotten. Imagine both of you together. Bless yourself with love, peace and joy, with happiness, with togetherness. Visualize करें उस व्यक्ति के कुछ अच्छे क्वालिटीज़ वापस से और मनी मन उसे धन्यवाद दें। और धीरे धीरे as and when you feel comfortable, you may open your eyes. Okay, how are you feeling? Yes, you may share experience, how you felt. I personally felt better when I was saying sorry. है ना? Yeah. I agree. बहुत बार हम लोग सॉरी बोल नहीं पाते हैं। Yes. और सो व्हेन यू डू दिस एवरी डे ना, आप इसका प्रोफाउंड इफेक्ट देखेंगे। आज हम लोग कुछ लोग मैकेनिकल किए होंगे, कुछ लोग उतना फीलिंग नहीं ला पाए होंगे, टाइम भी रश में है तो मैं भी थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, राइट?
When you do this every day, 7 times आप माफ़ी दे रहे हैं, 7 times माफ़ी मांग रहे हैं, your relationship will start healing. I'll share one of my initial experiences. I was in my college days and I entered into pranic healing. और ठीक है, अच्छा लग रहा था. I was always spiritual, inquisitive about knowing life, about God. मेरे को अच्छा लगता था. It is natural to me. And मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी ज़ोरदार लड़ाई हो गई थी. And I was really sad. 2-3 दिन तक मेरे को लगा ये हो क्या गया है. जिससे आप डेली बात कर रहे हो, जिससे डेली मिल रहे हो, उससे बातचीत बंद हो जाता है. उस एज में तो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी भी फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट. बट एंड आई वॉज रियली सैड. 2-3 दिन के बाद मैंने सोचा कि अब करे क्या. आई कैन नॉट बी इन दिस स्टेट, राइट. मेरे घर पे ही बोलते क्या हो गया, शांत रह रहा है तुम 3-4 दिन से. आप बोल भी नहीं पा रहे हैं कि भाई अब दोस्त से लड़ाई हो गया है तो मैं शांत हूँ. ये सब बोला भी नहीं जाता है somehow, and that was too younger age to even process lot of things. So what I did, मैंने सोल क्लास किया था, मैंने ये टेक्निक उसमें सीखा था. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस. एग्जैक्टली यही तरीके से 7 बार माफ़ी मांगता था, 7 बार माफ़ी देता था. डिलीजेंटली, दिल से मैंने ये 4 से 5 दिन किया होगा. 6ठा दिन उसका कॉल आता है कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों लड़ रहे हैं. मैं तो बोला मैं बोल ही रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों लड़ रहे हैं. वी सैट, वी सॉल्व द इशू एंड थिंग्स गॉट नॉर्मल बिटवीन अस. वी टुडे टिल डेट वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, राइट. सो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ जिसको हम लोग ख़राब कर लेते हैं. ये टेक्निक अप्लाई करने से यू विल गेट द रिजल्ट्स. एंड प्राणिक हीलिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट है डोंट बिलीव पीपल ब्लाइंडली. मैं जो बोल रहा हूँ मानने की ज़रूरत नहीं है. यू एक्सपेरिमेंट विथ इट एंड देन यू मेक योर ओन कंक्लूजन्स. देन बिलीव समबडी. कोई भी कुछ भी कह सकता है. यस, मानना है 7 times and do it for 7 days minimum. Okay. Also, this is the first level of forgiveness. इसके और भी levels हैं. You can really do deeper level of forgiveness. उसमें बहुत amazing feeling आता है, रिश्ते बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं. You can really feel that love and warmth again in a relationship. Yeah. Yes, sir. Exactly. शक्ति होती है. Yes. Yes. Yeah, well said. Yeah. Yeah. That is how distant healing works. Distant healing work करता है with 2 concepts, principle of interconnectedness and principle of directability. So ये दो है. OCD. Yeah. OCD can be treated. OCD depends on the severity of OCD. Suppose किसी को बहुत सालों से है और वो सुनने की क्षमता में नहीं है, उसको समझना नहीं, उसको ठीक नहीं होना है तो टाइम लगेगा. अगर वो इंसान ठीक होना चाहता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा. It depends from 7 days to maybe 3 months on an average. It can be healed. Patient should be receptive. उसको ठीक होना चाहिए, उसको मन होना चाहिए ठीक होने का. अगर नहीं मन है तो वो healing बहुत बार लेना ही नहीं चाहेगा. 50% actually is on the receiver's side and 50% is on the healer's side. मैं एनर्जी दे रहा हूँ, मैं आपको पेन दे रहा हूँ, आप मत लीजिए, तो इनको मिलेगा ही नहीं. Something like that. Okay. So that's what it is. So that brings me to one important thing. If we want to learn healing from you, how can we join you? Okay, so I'm from Ranchi, and and basic pranic healing can be taught in physical setup only. Okay. So if anybody wants to learn from me, maybe we can organize a class here in Nagpur. I can teach you here. Otherwise, learning is important. We have Nagpur में pranic healing centers हैं. आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, है ना? और मे बी वी कैन ऑर्गेनाइज अ क्लास. अगर आप लोग 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं, मे बी आई डोंट नो, मे बी नागपुर में क्लासेस होते ही हैं, अच्छे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, आप नागपुर में सीख सकते हैं. सीखना ज़रूरी है, बिकॉज आप सीखोगे तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको अप्लाई करना है. यू कैन कनेक्ट योर लोकल सेंटर्स. सो प्राणिक हीलिंग सेंटर्स इन नागपुर कैन बी. Okay. By the way, Google has all information. Just type Pranic Healing Center Nagpur. Yeah. Yeah. Some are better ones. Okay. Yeah.
I got So it. that brings us to the end of this fantastic session. So this session has been really insightful in understanding the abstract energy around us. So I think we all have some taking with us that we can heal ourselves, and just like we learn to eat and to speak, that important is just to understand our energy also and to manage energy. Thank you so much for this wonderful session. Great having you. Thank you to this wonderful and interactive audience also. To you, sir. Thank you so much. Thank you for moderating, and thank you everybody for being here. Thank you so much. I'm happy to inform one and all that the 8th edition of Orange City Literature Festival is scheduled on 20th, 21st and 22nd November of 2026. So, thank you for joining us, and we'll meet you for the next edition of OCLF 2026. Happy wisdom till then.